Okay, can you see these questions? तो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार चेक करो. What happens when an inflated air balloon is pricked with a pin? Name the property of gaseous state exhibited by this observation. जब हम एक बैलून को पिन चुभाते हैं, ठीक है, पिन से मारते हैं, तो क्या होता है? What will happen? और कौन सी गैसेस स्टेट की प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगी? So if we prick the air balloon with an pin, then it can burst, or it can tear and burst, Very good. or it can put hole inside the balloon. And what will happen when it bursts? Sir, it would give out a big sound. हाँ, yes, the sound will be produced. But gases particles, gases स्टेट में क्या होगा? अगर गैस पार्टिकल्स के साथ क्या होगा जब हम बैलून को चुभाते हैं और बर्स्ट हो जाता है वो? What will happen to the gas present inside the balloon? Any idea? The gas. Sir, the gas will escape. हाँ, the gas will escape. And what property is that? वो जो गैस escape हो रहा है, उस गैस की कौन सी प्रॉपर्टी वो शो कर रहा है? What type of property? Type of property. पार्टिकल्स की कौन सी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे यू कैन सी, या गैस की कौन सी प्रॉपर्टी है जो यू कैन एक्सपीरियंस हियर? तो अच्छा चलो, गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी याद है जो हमने लास्ट क्लास में देखा था? व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस? Like in air, the particles would have a lot of space between them. वेरी गुड. बट ठीक है, वो तो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज थी गैस के अंदर. व्हाट अबाउट सिंपली गैस? व्हाट अबाउट इट्स कंप्रेसिबिलिटी? व्हाट अबाउट इट्स शेप, वॉल्यूम? ये सब क्या था? हाँ, it has no volume, it has no shape, it has no size, and particles have a lot of space between them. Correct. And they are everywhere. Means they don't take any specific shape. So they don't have specific shape, they don't have fixed volume, they don't have fixed what about the compressibility? Sir, compressibility. Can they be compressed? Yes sir, easily. हाँ, गैस कैन इजीली बी कंप्रेस. सो व्हाट प्रॉपर्टी यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है? नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द गैस स्टेट एग्जिबिटेड बाय द ऑब्जर्वेशन. सो व्हाट प्रॉपर्टी यू आर सीइंग हियर? दैट गैस हैज अ फ्लूइड नेचर, राइट? गैस कैन फ्लो इजीली, right? Gas particles are very sparely arranged, right? Spacely arranged, and they are very randomly arranged. They will go anywhere they want, right? So they will flow. They will flow all over the place. Yes sir. What about the diffusion in the gas state? Is it high or is it low? Diffusion. Sir, diffusion is also very low. Diffusion is very high, not very low. कैसे लो होगा? डिफ्यूजन तो इसमें बहुत इजीली हो जाएगा ना. तुम परफ्यूम को छिड़को, पूरे पूरे एटमॉस्फेयर में मिल जाता है वो, तो पूरे पूरे रूम में तुमको फैलने लग जाएगा, राइट? फैल जाता है ना, वो इजीली डिफ्यूज हो जाता है. तो डिफ्यूजन इज वेरी हाई इन द गैस स्टेट. तो राइट, बेस्ट एग्जांपल है वो मिस्टर बीन वाला वीडियो याद करो, राइट? तो वहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे गैस जो है ना, इट कैन ट्रैवल ऑल ओवर द प्लेस. तो बिकॉज इट्स capability to diffuse is very high. So what property you are seeing? So it has more diffusion ability, right? It's diffusiveness, high diffusive property, right, which you are seeing here. No? Yes okay. sir. And it also has no fixed shape. So balloon का जैसे balloon फटता है तो what will happen? All the gas comes out and spread all over the environment.
Yes. Okay. Now, name the process which occurs when the drop of Dettol is added to the water. जैसे ही Drop of Dettol. हाँ डिटॉल को पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, कभी डाला है? Yes, sir. So Dettol will completely mix in the water. Hmm. So what property is that? What process is happening here? Diffusion, diffusion. Diffusion. Very good. So what is happening in diffusion? Sir, so in diffusion Hmm? process. Yeah, diffusion process. What is happening in that process? So how the Dettol particles are spreading inside the water? Yeah. Yes, yes, yes. So in this, when the all the particles of the Dettol, Hmm. Dettol. Hmm. So when it goes inside the water, then it starts mixing up with the other small particles in the what No, we no. can It say is in it the is water. getting it is getting in the places of interparticular spaces of water, right? So basically, if जहाँ पे जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, पानी है ना, पानी के बीच के पानी का जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में इंटरपार्टिकुलर स्पेस तो होगा ही, है ना? पानी Yes, के पार्टिकल्स के बीच में इंटरपार्टिकुलर स्पेसेस होगा, और वो जो इंटरपार्टिकुलर स्पेसेस होगा उसी में तो डिटॉल के पार्टिकल्स आके मिक्स हो जा रहे हैं ना, yes, sir. राइट? सो दैट्स हाउ द डिफ्यूजन इज हैपनिंग. क्लियर? Yes, sir. So Yes, sir. the particles of Dettol are mixing inside the interparticular spaces of the water, right? And Yes. it is disappearing there. Okay. To which physical state of matter do the following statement apply? Um. बताओ फर्स्ट वाला, इनकम्प्रेसिबल, नॉन फिक्स शेप, नो फिक्स शेप. किसके लिए, कौन से स्टेट के लिए अप्लाई होगा? जो इनकम्प्रेसिबल होता है और फिक्स शेप भी नहीं होता. Sir, water. वाटर. Water don't have a good compressibility, right? And also don't have a fixed shape, right? Compressible, no definite volume. Sir, air. Yeah, gas, right? So gaseous state has Yes. no high compressibility and also no fixed volume, because you can compress it but fixed volume तो नहीं होता ना उसका, right? Okay. Yes. अब फोर्थ क्वेश्चन देखना, ये डायग्राम है, ये रहा डायग्राम. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द डायग्राम बिलो shows burning of an oil lamp. Okay, so what is happening in this process, and which portion is what state? y वाला कौन सा स्टेट है, x वाला कौन सा स्टेट है? इसमें कौन सा जो है तुमको ये शो कर रहा है कि ये जो ऑयल लैम्प जो है बर्न हो रहा है, इसमें y वाला स्टेट क्या है और x वाला स्टेट क्या है? Sir, so the Y state of matter is air. No, Okay. that's fire. Wait. वो Yeah, air. फायर इज बेसिकली एयर, राइट? वहाँ पे तो गैस निकल रहा है ना. एट दैट पोर्शन यू विल सी कि गैस इज Yes. इवॉल्विंग. वहाँ पे हाथ डाल के देखना, काला काला पड़ जाएगा तुम्हारे हाथ में. इट इज इवॉल्विंग इन द फॉर्म ऑफ गैस. एक्स वाला, व्हाट इज एक्स? X. Sir, X is liquid form. एक्स इज द लिक्विड फॉर्म, राइट? तो आई गेस दिस Yeah. इज क्लियर. Hello, bachcha log. So before we start, there is a very small introduction about me. So I am Ujjwal Kumar Sinha, and this is the channel which you are seeing. And if you want a personal sessions or personal class with me, you guys can contact me on this number, right? आप एक free demo class book कर सकते हो. Apply for it now. आप मेरे को मैसेज करो व्हाट्सएप पे एंड टेल मी दैट यू वांट टू बुक अ फ्री डेमो क्लास फॉर क्लास 9th ट्यूशन, राइट? एंड यू गाइस कैन हैव अ ट्यूशन, एंड हम लोग एक ग्रुप के फॉर्म में मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स होंगे उस ग्रुप में, राइट? और वी कैन स्टडी इन दैट वे. एंड प्राइसिंग क्या होगा? तो प्राइसिंग इज 3500 फॉर ईच स्टूडेंट, राइट? एंड अगर आप लोग
ग्रुप इफ यू आर अ ग्रुप ऑफ 3 राइट मींस अगर आप 3 फ्रेंड्स एक साथ आते हो तो आप तीनों को 5% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 5 फ्रेंड्स हो और 5 लोग एक साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो देयर विल बी 10% डिस्काउंट एंड अगर 10 लोग हो तो 15% तक का आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो मींस अगर 10% का डिस्काउंट मिलता है आपको, अगर आप 5 लोग हो और 10% का आपको डिस्काउंट मिलता है मींस 350 रुपीज माइनस हो जाएगा, है ना? ऐसे ही 15%। सो आई गेस आपको ये आइडिया लग गया होगा। ठीक है, सबको ये इतना ही डिस्काउंट मिलेगा, राइट? तो मेरे को व्हाट्सएप पे जो गिवन नंबर था, राइट, उस पे आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो और मैसेज करके मेरे को बोलिए कि यू गाइस वांट टू बुक अ फ्री डेमो क्लास, राइट, एंड वी कैन हैव अ डेमो क्लास एंड आफ्टर दैट you can decide whether you want to continue with me or not. If not, then continue through the video and don't forget to like and subscribe the channel so that कि मुझे भी motivation मिले and there is more video related to these topics. Yes, sir. Okay, now the next concept. Can matter change its state? Does the matter have this Change ability it. to change its state? मीन्स लिक्विड से सॉलिड बन सकता है, सॉलिड से गैस बन सकता है, या आई मीन सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस बन सकता है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाँ सर। कैसे, क्या करें हम कि स्टेट चेंज हो? So we can say that from water we can turn it into solid. By freezing water it can turn into ice. ओके, सो In that बेसिकली manner, हाँ, तो लाइक अगर मेरे को गैस में कन्वर्ट करना है देन व्हाट डू आई डू? gas may convert. Sir. So you can boil it. So evaporation. Evaporation, right? If we boil it तो it will be converted into the gas. That's correct. So Yes. can matter change its state? Yes, definitely it can change its state, right? And how Yes. do we change the state? We change it by changing the temperature. Can I say that? Yes, sir. है ना? मतलब अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर रहा हूँ तो मैं मैटर का स्टेट भी चेंज कर दे रहा हूँ, है ना? तो टेम्परेचर इज द की फैक्टर हियर। व्हेन वी चेंज द टेम्परेचर द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस, है ना? मैटर सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस बन सकता है, गैस से लिक्विड बन सकता है और वापस सॉलिड बन सकता है। तो ये सब कुछ टेम्परेचर को चेंज करने से हो सकता है ना? हम ये कर सकते हैं। Yes, sir. सो हाँ. देखो, ऑन इंक्रीज, अब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे होता क्या है पार्टिकल के साथ, ठीक है? क्योंकि वो भी समझना पड़ेगा कि स्टेट कैसे चेंज होता है और पार्टिकल के साथ एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है? तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। क्या होता है ना, जब मैं सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो भी इंक्रीज होने लग जाती है, ठीक है? ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट्स वेरिएटिंग विद ग्रेटर स्पीड, वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। तो क्या होता है कि जब मैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा हूँ किसी पार्टिकल का तो पार्टिकल में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। यू नो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी विच इज पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन मोशन। तो अगर मैं मूव कर रहा हूँ, अगर तुम दौड़ रहे हो तो तुम्हारे अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है, तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है? अगर मैं चल रहा हूँ और मेरे अंदर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो ऐसे ही अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है? अब Yes. जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, मतलब वो बहुत तेज तेज मूव करने लग जाते हैं, ठीक है? तो जैसे ही Okay. तुम किसी पार्टिकल के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, है ना? जब लेट्स से कोई पार्टिकल है मेरे पास, कोई मैटर है, उस मैटर का जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो क्या होगा, उसके अंदर के पार्टिकल्स बहुत तेज तेज वाइब्रेट करने लग जाएंगे, Yes. राइट? क्यों वाइब्रेट करेंगे तेज तेज? Yes, sir. Because of the pressure. नहीं नहीं नहीं, बिकॉज होता है काइनेटिक एनर्जी विच इज इंक्रीज, है ना? टेम्परेचर देने से क्या इंक्रीज हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से वो तेज तेज वाइब्रेट करने लग जा रहा है, ठीक है? तो Oh, वाइब्रेशन okay. जो है वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। Oh, okay, क्लियर? sir. Okay. ठीक है? तो इफ यू इंक्रीज द Yes. टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, पार्टिकल को एनर्जी मिल जाती है, पावर आ जाता है ना? और जब पावर आ जाएगा तो क्या करोगे? भागोगे तेज तेज, है ना? इमेजिन करो कि जब खाते हो और खाने के बाद मस्त खाओ और उसके बाद सडनली तुम्हारे बॉडी में एनर्जी आ गई, फिर क्या करते हो? फिर अच्छे से बैडमिंटन खेल पाते Yes. हो? Yes, sir.
So it depends on your energy, how much energy which you are getting. अगर एनर्जी कम है तो यू Yes, विल नॉट sir. एबल टू परफॉर्म वेल. अगर एनर्जी ज़्यादा है तो यू विल एबल टू परफॉर्म वेल. एंड हाउ डू यू गेट द एनर्जी व्हेन यू ईट द फूड? हाउ डू द पार्टिकल्स गेट द एनर्जी व्हेन दे गेट द टेम्परेचर? ठीक है, जब उनको टेम्परेचर मिलता है, जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उनको एनर्जी मिल जाती है. कभी देखा है पानी को जब हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे देते तो पानी कैसे बिहेव करता है? क्या होता है पानी के साथ जब हम हाँ पानी को सर. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे देते हैं? सर पानी में कुछ ऐसे हाँ. स्टीम पहले बात आने लग जाता है, हाँ, फिर उसके बाद अंदर बबल्स आने लग जाते हैं, उसके बाद वो बॉयल होने लग वो जाता है ना, बहुत तेज तेज करके बॉयल होता है. जाता है. राइट. हाँ हाँ बहुत ये. तेज है ना, बहुत तेज तेज बॉयल होता है. राइट. तो सो व्हाट इज हैपनिंग व्हेन वी आर गिविंग द टेम्परेचर टू द सब्सटेंस? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसकी वजह से पार्टिकल भागने लग जाते हैं. तो पानी में देखो, पानी में इतने तेज पार्टिकल्स मूव करने लग जाते हैं, इतने तेज वाइब्रेशन होता है कि पानी बॉयल करने लग जाता है. राइट. So what Yes, sir. happens when you increase the temperature? The kinetic energy increases and the particles starts moving. तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, अब कहीं से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगा तो पार्टिकल्स जो है फिर छूट के भागने भी लग जाएंगे, है ना, कहीं और ही निकलने लग जाएंगे. Yes, राइट. sir. तो पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग फ्रीली. राइट. मोर फ्रीली इट विल स्टार्ट मूविंग. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे पानी का एग्जाम्पल अभी हमने लिया, तो जब पानी को बॉयल करते हैं तो जब बुलबुले निकलते हैं पानी से, तो उसमें जो गैसेस भी निकलते हैं, धुआं भी आता है, स्टीम निकलता है बाहर, है Yes, ना. sir. तो वो स्टीम बेसिकली है क्या? वो स्टीम वो है जो पार्टिकल्स जो वहाँ से भाग रहे हैं, निकल लिया वो पार्टिकल्स, इतनी एनर्जी उनको मिल गई कि वो भाग गए वहाँ से. ठीक है, वो अब उन्होंने बोला हमें नहीं रहना पानी Yes, के साथ, हम जा रहे हैं. ठीक है, तो वो स्टीम के फॉर्म में उड़ गए. ओके. सो yes, जैसे ही हम पानी को बहुत ज़्यादा गर्म करने लग जाते हैं, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द स्टीम बिकॉज पार्टिकल्स स्टार्ट्स गेटिंग द एनर्जी. एंड व्हेन द पार्टिकल्स गेट्स टू मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, दे escapes फ्रॉम द मीडियम. ठीक yes, है, मीडियम से स्केप कर जाते हैं. मैं तुमको yes, बहुत सारा पैसा दे दूँ, इतना पैसा दे दूँ कि तुम्हारे पास तुम गिन भी ना कर सको, तो क्या करोगे उस पैसे का? लेके जो है घूमने निकल पड़ोगे, है ना, yes, मस्त पूरा वर्ल्ड टूर हाँ, करने निकल पड़ोगे, है ना. तो वो पैसा क्या है? वो एनर्जी है तुम्हारे लिए. राइट. तो बोलोगे हट, हाँ, सब भाड़ में जाए, पढ़ाई लिखाई भाड़ में जाए, जा रहा हूँ मैं घूमने. ठीक है, अब तो इतना पैसा है, पढ़ पढ़ के करोगे क्या, है ना, बस घूमो फिर, और क्या. ठीक है. सो वही सीन होता है इन पार्टिकल्स के साथ भी, कि दे गेट सो मच अमाउंट ऑफ एनर्जी कि अब उसको रहने की जरूरत ही नहीं है किसी मीडियम में, वो स्केप कर जाते हैं. एंड दैट्स हाउ द स्टेट चेंजेस. ठीक है, इसी तरीके से स्टेट जो होता है वो चेंज होता है. ओके, ये क्लियर है? okay, sir. So Yes, how the state change when they get too much amount of energy, right? So a state is reached while the solid melts and is converted to liquid. ठीक है, एक स्टेट पहुंच जाता है जब सॉलिड जो होता है वो पिघल जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लिक्विड. राइट. तो yes, तुमने देखा होगा कि जब हम आइस को गर्म करते हैं, व्हाट हैपेंस? आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग. हाउ डज इट मेल्ट्स? बिकॉज द melting. पार्टिकल्स ऑफ द आइस स्टार्ट्स गेटिंग एनर्जी. टू मच एनर्जी उसको मिल जाता है, और जब बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाता है तो वो मेल्ट हो जाता है. राइट. Yes, sir. ओके. एंड दैट्स हाउ द आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. क्लियर? Yes, sir. याद रहेगा ये? Yes, sir. Great. So this we have discussed that what happens when you change the temperature, right? Means when we change the temperature, the state also changes. So here you can see, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. मैंने दो दो फोटोज यहाँ पे लगा रखे हैं. एक में तुम देखो कि कैसे पार्टिकल्स जो है वो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, रेड वाले पोर्शन में, जब टेम्परेचर हाई है तो पार्टिकल का वाइब्रेशन देखो कितना हाई है, और जब टेम्परेचर लो है तो पार्टिकल का हाँ, वाइब्रेशन देखो कितना कम है. राइट. ये डिफरेंस दिख रहा है ना? हाँ, ये बेसिकली यही एक्सप्लेन yes, कर रहा sir. है कि व्हेन यू इंक्रीज दैट टेम्परेचर, राइट, द मोशन और द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. ठीक है, और जब टेम्परेचर लो होता है तो मूवमेंट इतना फास्ट नहीं होता है. अब जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, और एक टाइम पे ये आएगा कि जो इनके बीच में बॉन्डिंग है
वो बॉन्डिंग टूट जाएगी और पार्टिकल्स स्केप कर जाएंगे। समझ में आया? Yes. और इस तरीके से पार्टिकल्स भागते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आगे जब इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, बॉइलिंग वगैरह। इतना क्लियर है ना? Yes, sir. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू मेल्ट अ सॉलिड। ठीक है, जब हम सॉलिड को मेल्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जैसे कि आइस हो गया या आइसक्रीम हो गया, वॉट एवर यू हैव सीन। ठीक है, जब भी हम सॉलिड सब्सटेंस को मेल्ट करते हैं तो तुमने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि उसका जो टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है, राइट? सो वेयर डज दैट हीट एनर्जी गो? कभी तुमने ये सोचा है कि जैसे मान लो, फॉर एग्जांपल मैं तुमको एक वीडियो के साथ दिखाता हूँ, जैसे ये लो, आइसक्रीम को हम लोग मेल्ट कर रहे हैं, है ना? तो आइसक्रीम जो है वो कम्प्लीटली मेल्ट हो जाता है, बट मेल्ट होने के बाद जो उसका तुमने नोटिस किया होगा उसका टेम्परेचर जो होता है वो फिक्स वैसा ही रहता है जो पहले था, राइट? इवन आइस के साथ भी ऐसा होता है, व्हेन द आइस मेल्ट्स उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता ज़्यादा, राइट? वो टेम्परेचर उतना ही हाँ. रहता है। तो वेयर डज दैट टेम्परेचर को, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस इज आइस एंड आइस लिक्विड भी है, राइट? मतलब वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस इन 0 डिग्री सेल्सियस, आइस ऑल्सो कन्वर्ट्स इनटू वाटर इन 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री Yes, sir. सेल्सियस पे वो आइस भी होता है वाटर भी होता है, ऐसा क्यों? एनी आइडिया? Sir, I think because all the heat escapes after the substance melts. हाँ, दैट इज ट्रू। सो व्हेन द सब्सटेंस मेल्ट्स, बेसिकली जब सब्सटेंस मेल्ट करता है तो हीट एस्केप करता है, लेकिन अभी तो वो चलो ठीक है, मैं मानता हूँ इसके, तो हीट एस्केप कर जाएगा तो फिर हीट तो उसमें कम हो जाना चाहिए ना, उसका टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कम हो जाना चाहिए अगर हीट एस्केप कर रहा है। मेल्ट करते टाइम नहीं होता, मेल्ट करते टाइम तो हीट मिलता है, फ्रीज करते टाइम होता है। ठीक है, व्हेन यू फ्रीज समथिंग तब हीट एस्केप हो जाता है, राइट? Yes. तो वेयर डज दैट हीट गो? क्योंकि अगर तुम मेल्ट कर रहे हो तो आइस का टेम्परेचर कम होना चाहिए, राइट? वो कम, और सॉरी आई मीन टेम्परेचर बढ़ना चाहिए व्हेन यू आर मेल्टिंग समथिंग, राइट? जैसे मैं आइस से पानी Yes. बना रहा हूँ तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए ना। टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हो रहा है? वो टेम्परेचर उतना ही क्यों है? कुछ समय के लिए तुम देखोगे उतना ही रहता है, फिर बाद में चेंज होने लग जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो टेम्परेचर हाँ. फिक्स रहता है बिल्कुल फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, ऐसा क्यों? फिर वो जो टेम्परेचर होता है जिसमें तुमने आइस को वाटर में कन्वर्ट किया, वो गया कहाँ? पता है? चलो इसको मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ, ये तुमने पहले कभी पढ़ा नहीं है, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर स्टडिंग अबाउट इट। हीट जो होता है ना, द हीट विच यू आर गिविंग द आइस टू कन्वर्ट इनटू द वाटर, ठीक है, दैट हीट इज कंजर्व्ड इनसाइड द सब्सटेंस। ठीक है, वो सब्सटेंस के अंदर ही जो होता है ना, उसके अंदर ही रह जाता है, और वो हीट कहाँ कंज्यूम हो जाता है? वो कंज्यूम हो जाता है टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द पार्टिकल्स। जो वो इतने क्लोजली पैक्ड थे आइस के टाइम पे, उसको ब्रेक करने के लिए जो हम थोड़ा हीट देते हैं तो हीट वहाँ पे कंज्यूम हो जाता है, ओके? और वो पार्टिकल्स जो Yes. होते हैं वो थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, तो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ टाइम के लिए वहाँ पे जो जितना हमने हीट दिया है वो हीट जो है ना वहाँ पे जाके छुप जाता है। इट इज़ बीइंग यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, वो उसमें यूज़ हो जाता है। Okay. तो इसीलिए वो हमें अपने थर्मामीटर में या कहीं पे हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे उस हीट को, ठीक है? तो दैट हीट, दैट हिडन हीट जो हमने दिया और वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, वो हिडन हीट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट, ओके? इट इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट। तो ये जो जैसे बॉन्डिंग होती है ना पार्टिकल्स में, अब आइस है तो आइस में पार्टिकल्स बहुत क्लोजली अरेंज्ड होंगे, राइट? बहुत टाइटली बॉन्डेड होंगे, हाँ. है ना? इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत हाई होगा। तो मेरे को अगर इसको वाटर Yes. में कन्वर्ट करना है तो मेरे को इतना हीट देना पड़ेगा कि वाइब्रेशन बढ़ जाए, है ना? और ये बीच का बॉन्डिंग जो है वो हाँ. वीक हो जाए, है ना? तभी तो वाटर में कन्वर्ट होगा, राइट? Yeah. तो वो जो हम हीट देते हैं और वो जो हीट कंज्यूम हो जाता है इस बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, उसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। वो हीट यहाँ पे कंज्यूम हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा बाहर, ठीक है, इसीलिए वो मेन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस अभी भी मेंटेन्ड है, ओके? So that type of heat, that type of temperature is called as the latent heat. ठीक है? As this heat energy is Yes. absorbed by the ice without showing any rise in temperature,
it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as latent heat. ठीक है, beaker के अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है उसके अंदर हीट जो है ना वो हिड हो जाता है, क्योंकि वो बॉन्ड्स को ब्रेक करने में या बॉन्ड्स को वीक करने में यूज हो जाता है. ठीक है, तो उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट. इज इट क्लियर? यस सर. लेटेंट का मतलब ही होता है छुपा होना, कोई चीज़ जो छुपी हुई है. ठीक है, तो लेटेंट हीट क्या होगा? छुपी हुई हीट. ठीक है, तो वो जो हीट यूज हो जा रही है, जो हीट कंज्यूम हो जा रही है टू चेंज द स्टेट, ठीक है, जो टू ब्रेक द बॉन्ड्स, टू वीकन द बॉन्ड्स बिटवीन द पार्टिकल्स, दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. क्लियर? ओके. याद रहेगा ये? यस सर. ओके, क्या समझ में आया लेटेंट हीट से तुमको? व्हाट हैव यू अंडरस्टूड? सर, सो latent heat means मतलब आइस में टेम्परेचर, अगर आइस का एग्जांपल ले, सो in ice the temperature will not even increase and all the contents of the ice will means start converting into water, right? yeah, water. राइट, बट स्टिल यू आर गिविंग द टेम्परेचर. तुम टेम्परेचर दे रहे हो तभी आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, बट उस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हुआ है ना. क्यों नहीं हुआ? कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि वो जो टेम्परेचर था, वो जो हीट तुमने दिया वो हीट कंज्यूम हो गया, राइट, टू कन्वर्ट द आइस इनटू वाटर. Yes. To break the bonds between the ice, to weaken the bonds between the ice, so that it can be converted into the water. ओके, तो वो उसमें कंज्यूम हो गया है ना, तो इसी के वजह से वो क्या हुआ कि वो हीट हम बोलते हैं कि वो छुप गया उस सब्सटेंस के अंदर, आइस के अंदर, ये वो सब्सटेंस जो भी था. ठीक है, yes. तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट. क्लियर है ये? Yes. ओके, तो उस टाइम ड्यूरिंग दिस सिचुएशन यू विल नॉट सी एनी राइज इन टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर में कोई राइज तुमको नहीं दिखेगा इस टाइम पे. क्लियर? तो ये जो हो रहा है ये लेटेंट हीट है. ठीक है, और लेटेंट हीट जो होता है ना, इसके दो होते हैं, दो टाइप्स होते हैं. एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो क्या होता है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल विद अ ग्राफ के साथ हम कुछ एग्जांपल लेते हैं. तो जैसे मान लो ये है टेम्परेचर, नीचे लिखो ऊपर लिखो टेम्परेचर ना, दिस इज द टेम्परेचर. यहाँ पे टेम्परेचर है एट द वाई एक्सिस. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हाट यू विल सी द चेंज इन द स्टेट. तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे यू विल सी कि ये जो है ना इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा और वो बिल्कुल वाटर भी होगा और वो आइस भी होगा, राइट, इट विल बी बोथ. ओके सर. ठीक है, फिर उसके बाद एज यू मूव फॉरवर्ड तो फिर ये वाटर में कन्वर्ट हो चुका है. ठीक है, एंड देन आफ्टर फ्यू सेकेंड्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में. या सॉरी, वाटर गैस में वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. आइस में क्या बात है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो अब इस टेम्परेचर पे यू विल सी कि ये जो है ना ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर भी होगा, ये गैस भी होगा, और फिर उसके बाद जैसे और टेम्परेचर इंक्रीज करो तो फिर ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है. तो दिस काइंड ऑफ ग्राफ यू विल सी. तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे तुमको जो है ना ये दिखेगा कि ये आइस भी है और ये वाटर भी है. ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे यू विल सी कि ये वाटर भी है और ये गैस भी है. यस. ठीक है, सो व्हाट इट इज शोइंग? इट इज शोइंग कि जो है ना ये तुम्हारा इस टेम्परेचर पे देयर इज अ पीरियड जहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. 0 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं इसको बोलता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस और ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस, राइट, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे यू हैव वाटर ऑल्सो एंड यू हैव आइस ऑल्सो, राइट, आइस और वाटर दोनों है यहाँ पे, है ना, और टेम्परेचर 0 डिग्री है. तो यहाँ पे क्या होता है? लेटेंट, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट. हाँ, द अमाउंट ऑफ हीट, देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखा है मैंने, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड into liquid at atmospheric pressure and its melting point is known as the latent heat of fusion. ठीक है, what it is called?
latent heat of fusion, and the amount of heat which is required to convert 1 kg of liquid into gas, ठीक है, 1 kg of liquid को गैस में कन्वर्ट करना है, ओके, Okay. उसके लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उस हीट को क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, Okay, sir. ओके, दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे जो हीट मिलेगा ना तुमको, ये हीट होगा लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन और ये हीट होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Okay, sir. Yes. ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? तो liquid turns into gas. यस, ठीक है, एंड Liquid turns to convert liquid into gas the amount of heat is required, that is called latent heat of vaporization। हीट की बात कर रहे हैं ना हम, लेटेंट हीट, कितना हीट देना पड़ रहा है हमें कि हम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर दे उसको, ठीक है, वो जो हीट है ना, Yes. वो जो मिनिमम हीट हमें देना पड़ता है, ठीक है, कि 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दिया जा सके, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर? Okay, sir. और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन Yeah. क्या होगा? Latent heat of fusion. हम्म, Sir, in this हम्म, latent heat of fusion, हम्म, so solid turns into liquid. हाँ, सो नहीं, liquid. हाँ हाँ, सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड, सही है। अब लेटेंट हीट की बात कर रहा हूँ मैं, लेटेंट हीट वो तो स्टेट चेंज होना हुआ, ठीक है, लेटेंट हीट क्या होगा? हीट, Sir, in latent heat, मतलब the property would change, but like ice will turn into water. हाँ, Ice will turn into water, परफेक्ट, but the temperature will stay the same टेम्परेचर विल as स्टे द it सेम, will hide. It will हाँ, द hide. हीट विच यू आर गिविंग टू चेंज द टेम्परेचर, ओके, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। जो हीट तुम दे रहे हो ना स्टेट को चेंज करने के लिए, वो लेटेंट हीट होता है। जैसे Okay, मैंने तुमको कुछ टेम्परेचर दिया, ठीक है, जिससे तुम जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, राइट, तो जो टेम्परेचर मैंने तुमको दिया जिससे तुम लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, वो टेम्परेचर है लेटेंट हीट, वो हीट है लेटेंट हीट। मतलब the heat हाँ, which turns the ice to liquid. यस, वेरी गुड, ठीक है, द हीट विच और द एनर्जी, इसको हम हीट एनर्जी बोलेंगे, ये ज़्यादा बेटर टर्म है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 kg ऑफ सॉलिड यानी 1 kg ऑफ आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें हीट देना पड़ रहा है, वो हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, Okay, sir. ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? Sir, in latent heat of vaporization, like the हाँ liquid turns into gas. हाँ, दैट इज ट्रू, So, दैट हैपेंस। The heat given to हाँ turn the liquid into gas is called latent heat of vaporization. करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। अब कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड? 1 kg ऑफ लिक्विड, ठीक है, 1 kg के लिए हम 1 लेटेंट हीट ऑफ, हाँ, तो 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड Okay. दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो दो कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ओके, ये याद Okay, sir. रहेगा, ठीक है। Yes. सो दे विल आस्क यू दिस इन द एग्जाम, ठीक है, कि एक्सप्लेन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या एक्सप्लेन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो व्हेन दे आस्क यू टू एक्सप्लेन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो हाउ विल यू एक्सप्लेन इट, कि द अमाउंट ऑफ हीट that is required to change 1 kg of solid into liquid is called latent heat of fusion. And when they ask you to explain Okay. latent heat of vaporization, so it is the amount of heat which is required to convert 1 kg of solid 1 kg of gas, क्या बोलूँ मैं, 1 kg of liquid into vapor, right, that is called latent heat of vaporization, Vaporization. Okay. ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार ये क्वेश्चन में आता है, ठीक है, और यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, लेटेंट हीट से तो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। Okay, sir. ओके, तो चलो आज हम लोग इतना ही करते हैं।